Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are diving into the strategy for BGC 106. So grab your textbooks and let's get started. So you have got your book, right? Now open block 2. Yes, you heard that right. We are starting with block 2 because block 1 is can be a bit dry. But don't worry, we'll get to it later because it's just as important. So now let's talk about block 2, which covers some super interesting genres: children's literature and young adult fiction. This block is broken down into 4 units that are essential for your exams. So unit 1, which is children's literature and introduction, this unit covers the basics. Think of it as the foundation. Understand the origins and characteristics of children's literature. Unit 2, which is through the looking glass, a detailed analysis, is a kind of you have to dive deep into Lewis Carroll's masterpiece. Look for motifs like the chess motif. This is super important for exams, literally. Now, let's talk about Unit 3, which is young adult fiction and introduction, writing from Sri Lanka. So, here you have to focus on how young adult fiction has evolved, especially in Sri Lanka. This gives a global perspective. Next up is Unit 4. This is Shyam Selvadurai's Funny Boy. This is really interesting story. What you have to do in Unit 4, you have to analyze themes of gender and space. Pay attention to how Selvadurai portrays Arji's journey. This is crucial for your essays, exams, in your long answers. Now let's move further. Now, after block 2, start with block 3. Block 3 deals with detective and science fiction. This block is packed with interview and imagination. So, if we'll talk about the units, so in this block we have total 4 units as well, like the block other blocks. And unit 1 is crime and detective fiction and introduction. And in this unit, you get to know the history and key elements of detective fiction. Okay, now let's move to unit 2. Unit 2 is Agatha Christie, the murder of Roger Ackroyd. So unit 2 में ये जो murder of Roger Ackroyd novel है, this is really interesting. और यहाँ पे जो क्राइम करता है, यानी कि जो मर्डर करता है, जो मर्डरर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन होता है. मतलब इस स्टोरी में वो बिल्कुल आपके सामने रहेगा, बट आपको ये बात बिल्कुल लास्ट में पता चलती है, और ये बात वो खुद रिवेल करता है. And let me tell you one more thing, that this novel is so controversial. Okay, so for unit 2, I will say you have to focus on the Gatha Christie's twisty plot, as it is a gold mine for exam questions, and focus on the narrative strategy of her novel, The Murder of Roger Ackroyd. Now let's move to Unit 3. Unit 3 is science fiction and introduction. In this unit, all you have to do is to explore the world of sci-fi and understand its themes and futuristic visions it presents. Now let's move to Unit 4. So, Unit 4 is Ursula K. Guin, The One Who Walked Away from Omelas. So, ये जो story है, this is a साइंस फिक्शन. ठीक है, ये साइंस फिक्शन होता है, और दिस वर्क इज डीप, रियली रियली डीप. तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है. एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मोरल और फिलोसफिकल क्वेश्चंस टाइप के चैप्टर से बन सकते हैं यहाँ पे चांसेस है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर. After block 3, now we are moving on to block 4, which is genres of popular literature. Third, graphic and visual narratives. And this block is visually stunning and deeply impactful. So now I hope it is clear for all of you that in this book we have 4 blocks, and each block has 4 units. Okay, so now let's start with the first one, which is Bhimyana experiences of untouchability. So what you have to do is, for this unit, I will say you have to focus on the social issues and how they are
portrayed through graphics. This is a key unit for understanding visual narratives. And yes, there is one more thing I want to tell you, that कि यहाँ पे इस बुक में मुझे ये जो है, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में ही हमें इंडियन चीज़ों से रिलेटेड पढ़ने को मिला हुआ है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम लोग बाकी ब्लॉग्स की बात करें तो वहाँ पे इंडियन चीज़ें नहीं है, मतलब इंडियन नैरेटिव्स, इंडियन नोवेल्स एंड ऑल। बट हाँ, फर्स्ट ईयर में हमें मिला था 101 में, बट आई डोंट थिंक सो कि हमें सेकेंड ईयर में कोई भी बुक मिला है इसके अलावा, इस ब्लॉक में जो दिया हुआ है इसके अलावा। तो अगर हम लोग एग्जाम परस्पेक्टिव से देखें तो ये ब्लॉक का इस यूनिट से कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है। बट अगर आप स्टोरी, क्योंकि क्या है, हम लोग को स्टोरी पता ही है ना, तो एक बार बस एक रीडिंग आपको देना है, दैट्स इट। ओके, नाउ वी विल मूव टू द second unit, and second unit is graphic narratives analysis Vyams Bhimyana. So for this unit I will say you have to dive deeper into the artwork and its narrative style, and you have to focus on the significance of the framed narrative. And let me tell you कि इसमें आपको मेनली क्वेश्चन आ जाता है, जैसे गॉन्ड आर्ट से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम में आ चुके हैं। Now let's move to the unit 3. Unit 3 is literature and cinema and introduction. So if we'll talk about this unit, तो इस यूनिट में मेनली आपको क्या मिलेगा, क्या डील करता है, तो ये आपको बताता है कि कैसे जो लिटरेचर है वो फिल्म में बनने लगे। जैसे कि अभी बहुत सारी फिल्में पता है जो कि एक्चुअल में पहले बुक थी, बट बाद में फिर वो फिल्म में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे मेनली आपको एडेप्टेशन देखने को मिलेगा। और एडेप्टेशन, ये जो टर्म है और ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट यूनिट 4, तो यूनिट 4 इज रस्किन बॉन्ड एंड विशाल भारद्वाज द ब्लू अम्ब्रेला। तो यहाँ पे आपको नोवेला ये सब चीज़ें देखने को तो मिलेगी ही। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका, ये एक बुक है जिसका मूवी बन गया था, इस टाइप से, मतलब समझ लो यूनिट 1 और 2 एक दूसरे से रिलेटेड है, और यूनिट 3 और यूनिट 4 एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो मेनली आपको यूनिट 4 में क्या करना है, हियर यू हैव टू डिस्कस हाउ, I mean to say this book discuss about how Bharadwaj brings Bond's story to life, ठीक है। यानी रस्किन बॉन्ड ने ये स्टोरी लिखी थी और विशाल भारद्वाज ने इस पे मूवी बना दी, ठीक है। और यहाँ पे इस वाली यूनिट में आपको एक और चीज, जो सात गुण माफ करके जो मूवी है ना, उसके बारे में भी पता चलेगा कि उस पे भी एक्चुअल में एक बुक थी। तो काफी इंटरेस्टिंग बुक है ये। बस ब्लॉक 1 से स्टार्ट करते हो तो फिर आपको टाइम की ज्यादा लगता है और थोड़ा सा आपको हार्ड लगने लगता है ये बुक। बट जैसे अगर आप ब्लॉक 2 से स्टार्ट करोगे, ब्लॉक 2, 3 और 4 काफी इजी है और आप काफी इंटरेस्टिंग है, आपको मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप बुक पढ़ रहे हो, ऐसे सारी कुछ ना बिल्कुल पिक्चर की तरह सामने चलेगी। और जब ये तीनों ब्लॉक आप पढ़ लोगे और फिर यूनिट ब्लॉक 1 पे जाते हो, तो फिर आपको और भी चीजें अच्छे से ब्लॉक 1 की समझ आएगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Okay, so finally let's circle back to block 1, which sets the stage for everything. So block 1 is popular literature and introduction. So here we have 4 units as well, and unit 1 is what is popular literature. So यहाँ पे मेनली आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि लिटरेचर का क्या कैसा डेफिनेशन है, पॉपुलर लिटरेचर क्या है, और भी कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, लाइक पॉपुलर लिटरेचर इन अमेरिका। तो उन सब पॉइंट से क्या आता है, शॉर्ट नोट्स बनते हैं। कभी कभी लॉन्ग आंसर में भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि ब्लॉक 1 इंपॉर्टेंट है, बट ब्लॉक 1 से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये आपके लिए थोड़ा बुक हार्ड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर आप ब्लॉक 2, 3 और 4 पहले पढ़ लेते हो तो आपको ब्लॉक 1 भी अच्छे से समझ आएगा और आपको लगेगा कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका कवर है। बट ब्लॉक 1 स्किप मत करना, कि इस बुक में कोई भी ब्लॉक आप स्किप नहीं कर सकते हो, इसका हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। और मेन बात पता है क्या है, कि इसमें ना आपका स्टोरी से क्वेश्चन नहीं आता, मेनली आपका जो टर्म्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो बैकग्राउंड होता है, और भी बहुत सारे कैनोनिकल जो टर्म्स है ना, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो। बट जैसा मैं बता रही हूँ आपको, जिस स्ट्रैटेजी से आप पढ़ोगे, तो पहला तो आपको बुक पढ़ने में बोरिंग नहीं लगेगा, एंड द सेकंड थिंग इज कि आपको जो है सारी कुछ अच्छे से समझ आएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि जब कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है ना, तो वो चीज़ बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। सो ब्लॉक 1 इज व्हाट इज पॉपुलर लिटरेचर, ये तो कवर हो गया ना। हाँ, तो लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 2।
ठीक है। तो यूनिट 2 क्या है? यूनिट 2 इज द नोशन ऑफ कैनोनिकल एंड पॉपुलर लिटरेचर। ओके, यहाँ पे लिटरेचर नहीं है, यहाँ पे लिटरेचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आएगा कि यहाँ पे ये डिफरेंस समझ आएगा कि जो कैनोनिकल स्टोरी, जो कैनन्स है, और जो पॉपुलर लिटरेचर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एंड यस, ये जो टर्म्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना ब्लॉक 1 के, ठीक है। अब जैसा मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ब्लॉक 1 अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो लास्ट में क्यों? क्योंकि देखो, ब्लॉक 1 से शॉर्ट नोट्स ज्यादा आने के चांसेस है, बट बाकी ब्लॉक से भी तो आने के चांसेस है ना। लेकिन जो आपका मेन क्वेश्चन आंसर होता है ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है, वो ब्लॉक 2, 3, 4 से आते हैं, और इधर से आपके शॉर्ट नोट्स और एक दो क्वेश्चन जो है ब्लॉक 1 से आते हैं। ब्लॉक 1 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इसमें दोनों ही सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं। आपके शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं, और उनके क्या मेनली चांसेस है कि ज्यादा ज्यादा उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर आते हैं उससे, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स थोड़े बहुत आ जाते हैं। और आगे जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं तो उसमें आपको देख के अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि वो ना जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने असाइनमेंट हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, सबको मर्ज करके एकदम ढूंढ के निकाला है, ठीक है। तो यस, तो अब थर्ड यूनिट क्या है? यूनिट 3, एक्सप्लोरिंग एकेडमिक एंड क्रिटिकल अप्रोचेस टू पॉपुलर लिटरेचर। So this unit mainly talk about the various critical lenses through which popular literature can be analyzed. Okay, and if we'll talk about unit 4, so unit 4 is popular literature today, right? So here you have to look at contemporary examples and trends in popular literature, understand how modern works reflects and influence current societal trends. Like देखो, अगर आप ना ये वाला पढ़ोगे तो हमें पॉपुलर लिटरेचर से पता चलता है, या लिटरेचर की डेफिनेशन से ये बात पता चलता है कि जो लिटरेचर होते हैं ना, वो उस पर्टिकुलर जिस टाइम पे वो स्टोरी लिखी गई है, जिस टाइम पे वो वर्क लिखा गया है, उस टाइम को वो रिफ्लेक्ट करती है। लाइक अभी से अगर आप देखोगे कि अभी से पहले वाली जो बुक्स लिखी गई है उसमें पहले के टाइम के अकॉर्डिंग चीजें दी हुई है। अभी ऐसा नहीं है कि जैसे कि पहले के टाइम पे, बहुत पहले जब स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था तो स्मार्टफोन से रिलेटेड बातें नहीं होती थी, बट अगर आप अभी देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको अभी के बुक में दिखेगी। ऐसा है कि आगे के जो जनरेशन होंगे वो हमारे जो बुक्स अभी लिखे गए हैं उससे पढ़ेंगे, तो उन्हें उन्हें पता चलेगा कि अभी जिस टाइम पे हम लोग रह रहे हैं उस टाइम पे किस तरह का चीजें होता था, राइट। तो लिटरेचर क्या करता है, वो जो अपनी सोसाइटी है उससे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि मॉडर्न राइटिंग्स में क्या है एंड ऑल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। So now let's get into the juicy part, important exam questions. These are the key questions you need to focus on. I'll give you a hint for each to help you prepare. Okay? So the first question is comment on the various genres of popular literature. So here what you have to do is यहाँ पे आपको जॉनर्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। लाइक जितने भी, पहले तो आप पॉपुलर लिटरेचर को डिफाइन करोगे, उसके बाद से फिर आप जॉनर्स जो है उसके, उसे आप वहाँ पे मेंशन करो। जैसे कि आपका हो जाता है, जैसे कि साइंस फिक्शन हो गया, ग्राफिक नॉवेल्स वगैरह हो गए, है ना, और डिटेक्टिव नॉवेल हो गए। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से पॉपुलर लिटरेचर के बारे में, उसके जॉनर्स के बारे में बताओगे, ठीक है। फिर उसे आप एक्सप्लेन करोगे, और उन सारे जितने भी आपने बताए हैं जॉनर्स, जैसे मैंने अभी बताया डिटेक्टिव, साइंस फिक्शन, इन सबका एग्जाम्पल दे दोगे। एग्जाम्पल देना कुछ हार्ड तो है नहीं, क्योंकि आपके बुक में ऑलरेडी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, है ना। मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड क्या हो गया, ये आपका डिटेक्टिव नोवेल का एग्जाम्पल हो जाता है ना। इस तरह से आपको लिखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो बहुत इजी है, व्हाट इज अ लिटरेरी कैनन। तो यहाँ पे आपको सीधे इस ये जो लिटरेरी कैनन है इसे डिफाइन करना है, और कुछ कैनोनिकल वर्क्स जो है उसके एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने छोटे छोटे में बता दिया, तो वैसा आपको नहीं करना, उसे थोड़ा वाइड करना। पहले लिटरेरी कैनन को जितना आप थोड़ा बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा करके करना, ठीक है। मतलब जितने वर्ड लिमिट्स दिए होते हैं ना आपके क्वेश्चन पेपर में, उस हिसाब से आपको मेंशन, आपको अपना आंसर जो है फ्रेम करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट मास मीडिया एंड टेक्नोलॉजी हैव अ रोल टू प्ले इन एक्सटेंडिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैनन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप टीवी, मूवी, सोशल मीडिया, इन सब का इन्फ्लुएंस बताओगे, ठीक है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द चेस मोटिव इन
थ्रू द लुकिंग ग्लास। अब देखो ये लेविस कैरल का बहुत ही अच्छा सा, आपने मुझे लगता है आप लोगों ने सुना होगा एलिस इन द वंडरलैंड, है ना। तो ये वाला जो है इसका और भी पार्ट्स आए थे उस बुक के, तो ये है वही है थ्रू द लुकिंग ग्लास, ठीक है। तो ऐसे आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना, मतलब हर बुक से, तो आपको काफी इजी लगेगा, मतलब एक रीडिंग में आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में आपको मेनली बताना है कि इसमें जो चेस गेम है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये किस तरह से ये जो नैरेटिव है लेविस कैरल का, इसे कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, एक्चुअली मैंने जितने भी क्वेश्चन लिखे ना वो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। और आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर भी करना है, और साथ साथ आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका राइट एन एसे डिस्कसिंग इम्पोर्टेंट इश्यूज इन पॉपुलर लिटरेचर। तो यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर ब्लॉक की हेल्प नहीं लेनी, यहाँ पे आपको चारों ब्लॉक में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आप मेनली क्या कर सकते हो, यहाँ पे बता सकते हो कि पॉपुलर लिटरेचर एज अ पार्ट ऑफ एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैसा है, कि यहाँ पे जो पॉपुलर लिटरेचर होता है उसको एक लार्जर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरह देखा जाता है। और यहाँ यहाँ पे एक और चीज़ है, पहले पॉपुलर लिटरेचर को ना इन्फीरियर समझा जाता था, बट बाद में फिर वो पॉपुलर लिटरेचर एकेडमिक्स में ऐड हो जाता है, क्योंकि पहले एकेडमिक्स में हमारे पॉपुलर लिटरेचर नहीं आता था, ठीक है। फिर पॉपुलर लिटरेचर को आप एज अ जॉनर फिक्शन भी शो कर सकते हो, यहाँ पे भी आप बता सकते हो, तो ये सेकंड इशू हो जाता है, ठीक है। फिर एक और चीज बता सकते हो कि कैसे पॉपुलर लिटरेचर, जैसा मैंने अभी आई थिंक ये बताया ना कि इंफीरियर टाइम पे इंफीरियर माना जाता था पॉपुलर लिटरेचर को, फिर आगे आगे टाइम बढ़ता गया, एंड देन फिर पॉपुलर लिटरेचर को भी एक प्लेस मिल जाता है, पहले एकेडमिक्स में नहीं होता था पॉपुलर लिटरेचर, फिर एकेडमिक्स में ऐड हुआ। तो इस तरह से पॉपुलर लिटरेचर टाइम के साथ ग्रो करता गया। फिर यहाँ पे और भी चीज़ें हमें पता चलती है कि पॉपुलर लिटरेचर के कैसे कैसे जो है रीडर्स बढ़े, और किस तरह से रीडर्स ने या फिर कहें तो ऑडियंस ने जो है हेल्प किया पॉपुलर लिटरेचर के ग्रोथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्यों बताया, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका आंसर यूजुअली आप ढूंढोगे एकदम बुक में डीप जाकर, तो इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आपको मैंने एक हिंट टाइप का दे दिया कि आप क्या क्या चीज़ें इसके बारे में देख सकते हो, फिर आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वुड इट बी करेक्ट टू से दैट रस्किन बॉन्ड and Vishal Bhardwaj's The Blue Umbrella is a children's story for adults? हाँ, ये भी डू यू अग्री, ये भी एक चीज है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थीम्स देखना है, ठीक है, जो कि एडल्ट्स और चिल्ड्रन दोनों के ही स्टोरीज में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसे यंग एडल्ट फिक्शन भी कहा गया है, ये जो हमारा स्टोरी है द ब्लू अम्ब्रेला, और चिल्ड्रंस स्टोरी भी कहा गया है, ठीक है, चिल्ड्रंस स्टोरी फॉर एडल्ट्स। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके तो आपको यूनिट में मिल जाएगा, लास्ट यूनिट में मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चिल्ड्रन लिटरेचर का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखना होगा, की माइलस्टोन्स देखना होगा, ये सब आपको ब्लॉक 1 में देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जामिन, आई थिंक ब्लॉक 1 के यूनिट 2 में है ये सब कुछ। एग्जामिन द थीम ऑफ जेंडर एंड स्पेस इन श्याम सेल्वादोराइज फनी बॉय। तो देखो यहाँ पे आपको थीम बताना है, जेंडर का थीम, इसका आपको पर्टिकुलर टॉपिक मिल जाएगा, ये बुक में इसका टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अर्जी, अर्जी कौन है, तो अर्जी हमारा प्रोटैगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है इसकी स्टोरी का। तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में कि उसने अलग अलग जगह पे कैसा कैसा एक्सपीरियंस किया, उसका स्कूल में कैसा एक्सपीरियंस था एंड ऑल, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेम्ड नैरेटिव इन भीमियाना। तो यहाँ पे आपको स्टोरी को कैसे फ्रेम किया गया है, ओवरऑल नैरेटिव में क्या इम्पैक्ट रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई एंड लोकेट यंग एडल्ट लिटरेचर विद इन पॉपुलर लिटरेचर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको यंग एडल्ट लिटरेचर का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, ठीक है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लायन एंड द यूनिकॉर्न इन थ्रू द लुकिंग ग्लास। यहाँ पे आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको बुक में एज अ टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। इग्नू का ये चीज होता है कि मेनली जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपके सब टॉपिक से आते हैं या फिर टॉपिक से आते हैं। तो जब आप बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ो, हार्ड कॉपी से पढ़ो, आप उसके थीम को, आई मीन उसके टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और हाँ, जैसा मैंने बताया, इस बुक में स्टोरी तो आप समरी के थ्रू देख लोगे, बट कुछ चीजें ऐसी है जो आपके स्टोरी से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। इसमें मेनली आपके इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, जो आपका की टर्म्स होता है, और कुछ जो स्टोरी से हटकर उसका बैकग्राउंड वगैरह, ठीक है, उन सब चीजों से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, बट अगर हम लोग यूनिट नहीं, ब्लॉक 2 की बात करें, तो उसमें आपका जो ये लुकिंग थ्रू द लुकिंग ग्लास वाला स्टोरी है, इसमें आपके क्वेश्चन स्टोरी से रिलेटेड आते हैं, क्योंकि वो पूरा जो ब्लॉक है ना, वो ब्लॉक नहीं कहूंगी, पूरा जो 2 यूनिट है आगे का, वो दोनों इस चीज पे है कि वो स्टोरी वाइज आपका डिवाइड है, आई मीन टू से सब टॉपिक वाइज आपका डिवाइड है स्टोरी। तो आपको उस तरह से पढ़ना है। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं, एनालाइज फनी बॉय एज बिल्डंगस्ट्रोमन। अब ये क्या है, बिल्डंगस्ट्रोमन क्या होता है, उसके लिए आपको पहले ये जानना होगा। तो बिल्डंगस्ट्रोमन क्या होता है ना, उसमें प्रोटैगोनिस्ट का एक्सपीरियंस बता रहा होता है कि उसके लाइफ में उसने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, बैड एक्सपीरियंस किया, उसकी जर्नी क्या रही, उसका कॉन्फ्लिक्ट रहता है पर्सनल ग्रोथ वगैरह में, मैच्योरिटी आती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें देखने को मिलता है कि स्टोरी में जो प्रोटैगोनिस्ट है, वो एक कह सकते हो कि एक ऐसा पर्सन जो सब कुछ लॉस में चल रहा हो, जिसका जो सब कुछ लॉस्ट कर चुका हो, वो कैसे कैसे अपना सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ता है, उसकी जर्नी दिखाई जाती है, ठीक है। बोलते हैं ना, जीरो टू हीरो, तो उस टाइप की चीज है कि उसकी, मतलब ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो पर्सन जो है, कुछ खास उसको नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, बट जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है उसको एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें इससे पता चलती है, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के आंसर में, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है कि अर्जी जो है, हमारा जो प्रोटैगोनिस्ट है, आप जब स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, और अगर पढ़ रखा है तो वेरी वेरी गुड, क्योंकि अगर आपने स्टोरी पढ़ रखा है और बुक को थोड़ा बहुत देख रखा है, तो फिर आपको तो ये क्वेश्चन बन भी जाएगा, और ये सारे क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए ना, तो लिटरली आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, और आप एग्जाम काफी अच्छा दे के आओगे, ठीक है। क्योंकि ये बुक कुछ खास हार्ड नहीं है, बस ब्लॉक 1 में ही इसमें प्रॉब्लम है, बाकी इतना इजी बुक है ये, इतना इंटरेस्टिंग, लाइक मैं जब अपने सेकेंड ईयर में थी ना, तो ये मेरा फेवरेट बुक था लिटरली। हाँ, जब मैंने ब्लॉक 1 स्टार्ट किया था तब तो नहीं, बट जब मैंने ब्लॉक 2 स्टार्ट किया था मतलब ब्लॉक 1 के बाद मैंने, मतलब होता है ना, पेज टर्न करते रहते हैं, तो ब्लॉक 2 आया, तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा उसका टॉपिक, उसके बाद से फिर मैंने ब्लॉक 2 3 4 पहले पढ़ा एंड देन ब्लॉक 1। तो अगर मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, स्ट्रेटजी बता रही हूँ, तो इसका मतलब वो मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका, ये करना है, एनालाइज फनी बॉय एज अ बिल्डिंग स्ट्रोमन में, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बिल्डिंग स्ट्रोमन को डिफाइन कर देना, ठीक है। उसके बाद फनी बॉय का जो इसमें दिखाया गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस तरह से आप फ्रेम कर सकते हैं अपने आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नैरेटिव वॉइस इन द ones who walk away from the omegas। इसमें आपको नैरेटिव वॉइस के बारे में बताना है, स्टोरी का क्या इम्पैक्ट रहा है, किस तरह से स्टोरी स्टोरी चली है। यहाँ पे आपको, हाँ, यूटोपिया टाइप की चीजें देखने को मिलेगी, तो वो सारे टर्म्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से आपको इस पे लिखना है। देन डिस्कस द चेस मोटिव एज अ सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लुकिंग थ्रू द लुकिंग ग्लास, ठीक है। आई थिंक ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, पहले क्वेश्चन आया था क्या, चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ इसमें, अगर आया है तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक्सप्लोर करना है, यू हैव टू एक्सप्लोर हाउ द मोटिव रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर्स मूव्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड स्पेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्जीज स्कूल इन फनी। यहाँ पे आपको बताना है कि इस नैरेटिव में स्कूल का क्या रोल रहा है, क्या रोल रहा है यहाँ पे, कि जेंडर रोल्स को किस तरह से अफेक्ट करते स्कूल, क्या हुआ था स्कूल में अर्जी के साथ, ये भी आपको बताना होगा इंसिडेंट, कि स्कूल में क्या क्या था, उसको कैसे पोएम रिसाइट करने बोला गया था, देन वो वहाँ पे एक फ्रेंड से मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको अपने इस क्वेश्चन के आंसर में फ्रेम करनी है।
Now let's move to the next one. So, besties, our next question is comment on the narrative strategy in the murder of Roger Ackroyd. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड जो नोवेल है उसके नैरेटिव स्ट्रैटेजी के बारे में बताना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप अगैथा क्रिस्टी के बारे में बताओगे कि उन्होंने ये लिखा है और उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दोगे, अगर ये लॉन्ग आंसर में आता है तो। ऐसे तो मोस्टली ये लॉन्ग आंसर में ही आने वाला है, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा बताओगे। एंड देन फिर यहाँ पे उसका जो स्ट्रैटेजी है, नैरेटिव स्ट्रैटेजी, उसके बारे में बताओगे। तो यहाँ पे 2-3 लाइन आप ऐड कर सकते हो, लाइक जो अगैथा क्रिस्टी है उन्होंने बहुत ही स्किलफुली हमारा एज एन रीडर या फिर ऑडियंस हमारा अटेंशन जो है वो एक्चुअल कल्प्रिट से डाइवर्ट कर दिया है। एंड बहुत सारे ट्विस्ट रहते हैं एंडिंग में, और इनके जो नैरेटिव स्किल्स है, इनका जो टेक्निक है काफ़ी अलग 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 होता है, लाइक एल्यूशन, फोर शैडोइंग, आयरनी एंड शिफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज। मतलब लिटरली यहाँ पे जो हमारा नैरेटर होता है, यानी जो थर्ड पर्सन होता है, वो हमारे जो स्टोरी है, जो नोवेल है, उस नोवेल का एक कैरेक्टर होता है, और वो कैरेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। अच्छा चलो मैं रिवेल कर ही देती हूँ, ये जो नोवेल है इसका जो मेन कल्प्रिट होता है वो हमारा नैरेटर ही होता है, और वो नैरेटर का नेम है डॉक्टर जेम्स सेपर्ड। एंड मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, हरक्यूल पायरेट, यानी जो डिटेक्टिव होता है, वो उससे ही असिस्ट कर रहा होता है खुद को ढूंढने में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग नोवेल है, तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। लेट्स मूव फर्दर, डिस्कस साइंस फिक्शन एज अ लिटरेरी जॉनर। तो अब आपको, तो देखो साइंस फिक्शन की अगर हम लोग बात करें ना, तो साइंस फिक्शन को हम लोग लिटरेचर ऑफ आइडियाज भी कहते हैं। एंड इस साईफाई नॉवेल्स में, यानी कि जो हमारा साइंस फिक्शन होता है उसको शॉर्ट में साईफाई बोलते हैं, इतना तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, राइट। तो इसमें बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स दिखाए जाते हैं, एंड बहुत ही इमेजिनेटिव स्टोरीज होती है इसमें, कुछ भी पॉसिबल हो जाता है, लाइक यूटोपिया टाइप होता है ना, यूटोपिया होता है एंड डिस्टोपिया होता है, तो बहुत सारी चीजें इस तरह से हमें, हमारा जो बुक है उसमें भी हमें देखने को मिलेगा ये चीज, यूटोपिया एंड डिस्टोपिया सारी चीजें। और यहाँ पे बहुत ही क्रिएटिवली रियल और इमेजिनरी साइंस या टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है, डिपिक्ट की जाती है, और हमें प्लॉट सेटिंग और थीम में ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे करके दिखाया जाता है। तो साइंस फिक्शन क्या है आप पहले ये डिफाइन करोगे, फिर इससे एज अ लिटरेरी जॉनर आप डिस्क्राइब करो। अब कैसे करोगे, तो आपको इसके थीम्स हाईलाइट करने होंगे, फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स बताने होंगे कि किस तरह की चीज़ें हमें, जैसे टाइम मशीन का यूज़ होना, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसे जो हमें साइंस फिक्शन में देखने को मिलती है। अब आप एग्जाम्पल में हमारे बुक में जो दिया हुआ है उसे यूज़ कर सकते हो। तो हमारा जो साइंस फिक्शन का स्टोरी है वो क्या है, द वंस हु वॉक अवे फ्रॉम द ओमेलास। तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, तो इससे आप अपने आंसर में एग्जाम्पल के साथ फ्रेम करोगे ना, तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, एंड लिटरली आपका जो आंसर है उसका वेटेज भी बढ़ेगा। So the next question is, does the language of cinema convey meaning discuss with reference to Vishal Bharadwaj Tabdu? अमरेला, यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे जो सिनेमैटिक टेक्निक होते हैं एंड जो लिटरेरी टेक्निक होती है उसको एक दूसरे से कंपेयर करना है, थोड़ी लैंग्वेज की बात करनी है, एडेप्टेशन के बारे में बात करनी है। एडेप्टेशन को आपको यहाँ पे ऐड करना ही होगा, क्योंकि हमारा जो थोड़ा सा जो हमारा जो स्टोरी होता है ना, सिनेमा मूवीज, तो वो एडेप्टेशन होता है किसी भी बुक का। लाइक अगर आप रामायण महाभारत देख रहे होते हो, जैसे हमारा कोई भी मूवी बनता है उस पे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी बुक की एकदम लाइन टू लाइन सब कुछ लिख दिया हो, ये पॉसिबल है ही नहीं ना। तो क्या हो जाएगा कि पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा, उसी चीज को बनाने में, पता चलेगा हम 3 घंटे की मूवी है, यहाँ पे हम 3 महीने 3 साल ऐसे लगे पड़े हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, तो उसको अडेप्टेशन करते हैं, क्या करते हैं उसमें थोड़ी चेंजेस लाते हैं, उसको थोड़ा छोटा करते हैं, एंड बहुत सारी चीजें अलग अलग ऐड करते हैं, हर अपने अपने टाइम के हिसाब से मॉडर्न करते हैं। लाइक महाभारत, पुराने टाइम का जो महाभारत है, जो हमारे कोविड के टाइम में चला भी था, है ना, तो उस पे क्या था कि वो बहुत ही पुराना था, बट वहां पे अडेप्टेशन की लिया था उन्होंने, तो इस वजह से वो चला था, कम टाइम तक चला था, मतलब 30 मिनट्स का एपिसोड होता है ना, तो फिर उस तरह से वो चला था।
बट सोचो अगर वो लाइन बाय लाइन लेते तो और भी कितना ज्यादा लंबा हो जाता वो, है ना। तो ऐसे हम लोग मूवीज का देख के चलते हैं, क्योंकि मूवीज 3 घंटे की होती है ना, वो तो डेली होता, दो डेली आई एम टू से जो मूवी है उसको लेके चलते हैं तो 3 घंटे की मूवी बहुत लंबी हो जाएगी अगर हर एक चीज जो बुक में होता है उसे दिया दिखाया जाए तो क्या करते हैं वो लोग, कुछ चीजें चेंज कर देते हैं, कुछ शॉर्ट कर देते हैं, कुछ सीन चेंज कर देते हैं, डायलॉग्स चेंज कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आप अडेप्टेशन वाला चीज इसमें ऐड कर सकते हो, ये काफी अच्छा रहेगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा नेक्स्ट, इलिस्ट्रेट द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द क्लासिक एंड क्लासिकल। ये आपका बुक में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों का डिफरेंस बताना है कि क्लासिक और क्लासिकल में क्या। तो आपको बस यहाँ पे डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज बतानी। अब देखो डिफरेंसेस, जैसे कि ये क्लासिक हो गया, तो क्लासिक क्या है, ये जो वर्क होते हैं ये सारे इसमें जो भी वर्क आते हैं वो हमारे बहुत टाइम तक चलते रहते, टाइम चेंज होते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। बट क्लासिकल टाइप के जो वर्क होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वो चलते हैं, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ही उनका असर रहता है, उसे लोग पसंद करते हैं, उसे लोग जानते हैं। बट क्लासिक में नहीं होता। क्लासिक में क्या होता है, क्लासिक में हमारा ये टाइम के साथ चलते रहता है मतलब ये जो वर्क होते हैं इस टाइप के, दैट हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, अभी हुए भी हैं, है ना। बहुत सारे वर्क्स हमारे अभी भी हम पढ़ रहे हैं जो कि पुराने वर्क्स हैं। एंड क्लासिकल के क्या होते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आते हैं, उसके बाद फिर उन्हें पढ़ना लोग कम कर देते हैं और उसे ज़्यादा जाना नहीं जा सकता। अब जैसे कि क्लासिकल में आपके आ गए रोमन लिटरेचर टाइप के, एंशियंट ग्रीक लिटरेचर टाइप के, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो दोनों के सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, लोगों का क्लास भी काफ़ी हाई होता है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखा जाता है। जैसे कि अगर हम लोग अपनी बात करें तो संस्कृत हो गया, ठीक है। बट जो हमारा क्लासिक्स की बात करें तो कुछ क्लासिक्स को जो है ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बना दिया गया, नॉर्मल हिंदी कर दिया गया, जो हम लोग आज के टाइम पे बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द टर्म यंग एडल्ट लिटरेचर। डू यू थिंक यंग एडल्ट लिटरेचर हैज कार्व्ड a place within popular literature? Give example. तो यहाँ पे आप सबसे पहले यंग एडल्ट लिटरेचर को डिफाइन करने वाले हो, एंड देन फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, लुक, डू यू थिंक यंग एडल्ट लिटरेचर हैज कार्व्ड अ प्लेस विद इन पॉपुलर लिटरेचर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आपको यंग एडल्ट लिटरेचर का सिर्फ इम्पैक्ट बताना है कि क्या तरह का इम्पैक्ट रहा है उनका। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दे दोगे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स के बारे में पूछा है। देखो कभी कभी ना एग्जाम्पल के बारे में नहीं पूछा होता है, तो अब आप एक एग्जाम्पल एटलीस्ट दे दो ताकि लगे कि हाँ स्टूडेंट को समझ में आया है। ठीक है, क्योंकि वहां पे ना आंसर पढ़े जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अटेम्प्ट अ बिल्डिंग्स रीडिंग अ फनी बॉय। तो फनी बॉय करके आपको एक स्टोरी मिलेगी, उसकी भी आप समरी भी अगर देख लोगे ना तो इतना आपके लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके आपको बिल्डिंग स्ट्रोमन के बारे में देखना है, ये टर्म ना लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पर फोकस करना है। तो बिल्डिंग स्ट्रोमन होता क्या है, तो बिल्डिंग स्ट्रोमन जो है एक लिटरेरी जॉनर है जो कि मेनली फोकस करता है किस पे, जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है उसके मोरल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ पे, जैसे वो छोटे से लेके कैसे कैसे हम अपने एडल्टहुड में गया, अपने बचपने से कैसे वो मैच्योर हुआ, ये चीज ये यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अर्जी के कैरेक्टर, हमारा मेन कैरेक्टर होता है फनी बॉय का अर्जी, तो उसके कैरेक्टर के बारे में बताना है आपको। ठीक है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है, और क्या क्या चीजें उसे फेस करनी पड़ती है, और उसका जो प्रॉब्लम होता है एक, तो वो हमें देखने को मिलता है, किस तरह की प्रॉब्लम वो फेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट in your view makes the murder of Roger Ackroyd one of the most controversial mysteries till date? अब देखो यहाँ पे आप वही करोगे, पहले आप इस वाले नोवेल के बारे में बताओगे कि किसने लिखा, क्या लिखा, इसमें क्या है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके ट्विस्ट के बारे में बताना है, इसके रिसेप्शन के बारे में बताना है, ये सारी चीजें आपको इसमें डिस्कस करनी है। ठीक है, कि किस तरह से अगैथा क्रिस्टी ने डिफरेंट नैरेटिव वे यूज किया है, जहाँ नैरेटर को ही इन्होंने कल्प्रिट बना दिया है। तो ये सारी चीजें आप इसमें डिस्कस करोगे तो आपका ये आंसर का फ्रेम कर लोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ साइंस फिक्शन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे बताना है यहाँ पे कि जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने कैसे कैसे साइंस फिक्शन को सामने लाया, कैसे कैसे जो हमारा साइंस फिक्शन उसका डेवलपमेंट हुआ। तो आपको बस यहाँ पे ऑथर्स के वर्क के बारे में लाइन मतलब ऑर्डर में बताना है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहेगा। एंड फिर यहाँ पे आप इस साइंस फिक्शन को फिर से डिफाइन करोगे, उसके बाद इस चीज़ को लिखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेम नैरेटिव इन भीमियाना। तो आपको यहाँ पे बस बताना है कि ये जो भीमियाना का नैरेटिव है उसका सिग्निफिकेंस के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ये सब आप पढ़ोगे चैप्टर तभी आपको समझ में आने वाला है। Discuss the manner in which Ruskin Bond's The Blue Umbrella has been adapted by Vishal Bharadwaj in his film The Blue Umbrella। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सेम जो वहाँ पे किया था, दोनों के स्टोरी टेलिंग में आपको उसके टेक्निक में आपको डिफरेंस बताने हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रस्किन बॉन्ड के बारे में लिखोगे, उनके बुक के बारे में लिखोगे, कब लिखी थी, कब पब्लिश हुई थी। एंड देन आप भारद्वाज के बारे में लिखोगे कि उनकी फिल्म कब जो है रिलीज हुई थी, उसमें क्या दिखाया गया, फिर दोनों के लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, दोनों की लिटरेरी जो उन्होंने स्टोरी बताई है उन दोनों के बीच में, उनके टेक्निक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, दैट्स इट। इसका आंसर फ्रेम कर लोगे इस तरह से। कमेंट ऑन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज रिफ्लेक्टेड इन द भीमियाना। अब देखो इस चीज को हाईलाइट करते हुए हमारे बुक में ऑलरेडी दिया गया है सब टॉपिक्स में, तो इसके लिए आप बुक को बस एक बार रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा। देखो इसमें इस बुक में ना बहुत सारी चीज काफी फैमिलियर है, जिसे आप एक बार में रीड करके ना बहुत इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको अम्बेडकर के, हमारे जो बी आर अम्बेडकर हैं उनके की मोमेंट्स को, मतलब जो भी उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी और जो आपके सब टॉपिक्स में अच्छे से दिया हुआ, लाइक वाटर वाला प्रॉब्लम एंड ऑल, ये सारी चीजों को डिपिक्ट करना है यहाँ पे। और ये बताना है कि किस तरह से ग्राफिक नोवेल में इन चीजों को डिपिक्ट किया गया, उनकी लाइफ के बारे में जो भी इंसिडेंट हुए हैं। Okay, so our next question is there a distinction between crime narrative and detective fiction? What do critics say about these two categories? यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस आपको ना इन दोनों का डेफिनेशन देना है, लाइक क्राइम नैरेटिव्स क्या होते हैं, क्राइम फिक्शन क्या है। देखो यहाँ पे क्राइम नैरेटिव्स भी बोल सकते हैं, क्राइम फिक्शन भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, डिटेक्टिव फिक्शन और क्राइम फिक्शन, मतलब इन सब चीज़ों को आपको डिफाइन करना है, इन दोनों को। उसके बाद दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बताओगे, एग्जाम्पल फ्रेम करोगे एंड दिस। ओके, तो फिर ये व्हाट डू क्रिटिक्स से अबाउट दीज टू कैटेगरीज, क्या बोलते हैं, दोनों चीजें लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाउ इज अर्जीज लाइफ इन फनी बॉय इन्फॉर्म्ड बाय ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स ऑफ ए सोसाइटी। अब देखो इस जो फनी बॉय जो हमारा स्टोरी रहता है उसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखाई जाती है जो इससे ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स के बारे में जहाँ पे हमें पता चलता है। तो आप वो स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, या फिर समरी पढ़ोगे, इसको देखोगे, समझोगे, तो आपको इस चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप उस कुछ बट इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, मेन क्वेश्चन ये है ना। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको स्पेसिफिक इंस्टेंसेस बताने हैं जहाँ पे जेंडर नॉर्म्स जो है, अर्जी जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में उसको अफेक्ट करता है। ये आप इस तरह से इसका आंसर फ्रेम कर लोगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, डू यू थिंक सिनेमा एक्सपेंड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर? डिस्कस विथ रेफरेंस टू सिनेमैटिक एडेप्टेशंस ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल होते हैं अडेप्टेशन के वो बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डू यू थिंक सिनेमा एक्सपेंड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बताओगे यस और नो। तो यस होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आप बताओगे कि किस तरह से ये चीज़ हो रही है, किस तरह से अडेप्टेशन हो रहे हैं, किस तरह से इस जो मूवी में दिखाया जाता है उसकी वजह से लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो फिर वो बुक पढ़ रहे हैं। एंड क्या क्या जो सिनेमा है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पे, ऑडियंस पे, और इस वर्क पे जो पहले लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अटेम्प्ट अ डिस्कशन ऑन chick lit as a genre of popular literature with emphasis on its gender politics। अच्छा, chick lit के बारे में ना आपको एक अलग से आपको कोई सब टॉपिक नहीं मिलेगा, आपको एक टॉपिक के अंदर ही एक छोटा सा चिकलिट करके इसी तरह से होता है, कॉमे में, इन्वर्टेड कॉमा में लिख जाएगा, फिर आपको उससे पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं
तो आपको वैसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थीम्स और एग्जाम्पल्स बताना है चिकलिट नॉवेल्स का, ठीक है। आगे बढ़े। हाउ इज लैंग्वेज यूज्ड इन थ्रू द लुकिंग ग्लास, एक्सप्लेन द ambiguities and word play in the novel। यहाँ पे आपको कैरल, जो लेविस कैरल, इन्होंने बहुत ही अमेजिंगली लैंग्वेज का यूज किया है। कभी कभी रबिश लैंग्वेज होता है, कभी कभी हम्टी डम्टी वाला जब आप पढ़ोगे ना सब टॉपिक तो आपको अच्छे से क्लियर होगा ये सब चीज जो मैं अभी बता रही हूँ। तो हम्टी डम्टी का एग्जाम्पल जो वो एलिस से बात कर रहा होता है तो आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है। एंड फिर आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन द एम्बिग्विटीज एंड वर्ड प्ले, ये सेम चीज है, आपको लैंग्वेज के बारे में लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द वेरियस थीम्स दैट यंग एडल्ट फिक्शन डील्स विद, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे थीम्स के बारे में बताना है यंग एडल्ट फिक्शन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेल अगर इसका आपको बता भी रहा है कि क्या थीम्स लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, आइडेंटिटी, लव, रिबेलियन, ये सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो इसके थीम्स में, ठीक है। मेनली आपको यंग एडल्ट फिक्शन में या लिटरेचर में जो भी कह लो उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी, रिबेलियन, लव एंड ऑल। हाउ डज अर्जीज सेक्सुअल identity is in Funny Boy interfere with the formation of his sense of self, discussed with examples from the novel। यहाँ पे आपको अर्जी का जर्नी बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है और क्या क्या चीज़ें उसके लाइफ में आती है जिससे वो खुद को पहचानता है, अपनी आइडेंटिटी पहचानता है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें एक्सप्लेन करनी है, ये सब आप जब नॉवल पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। Comment critically on the narrative technique used by Agatha Christie in the murder of Roger Ackroyd। हाँ, यहाँ पे जो अर्जी का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं हमारा जो मेन ऑथर है वो उनसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो ऑथर के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ना इस नोवेल के ऑथर के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये शायद क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया ना। हाँ तो इसमें क्या कर हाँ तो इसमें आपको अगाथा क्रिस्टी के बारे में बताना है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कैरेक्टर है वो खुद ही ये स्टोरी बता रहा होता है, तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। हम लोगों ने इसके बारे में पीछे पढ़ा हुआ है, बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो इसमें मुझे फिर से इतना बताने की ज़रूरत है। बट हाँ स्टार्ट कैसे ही करना है, ऐसे ही करना है। अगाथा क्रिस्टी ने लिखा, पब्लिश कब हुआ, फिर देखो ज़्यादा डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस अगाथा क्रिस्टी के 2-4 वर्क्स और याद कर लो, उसके बारे में 2-4 चीज़ें और पढ़ लो, ताकि आप अगर आंसर आपको नहीं भी आ रहा है ना तो आप अगाथा क्रिस्टी के अदर वर्क्स को थोड़ा थोड़ा लिख लो, जिससे आपका आंसर थोड़ा लॉन्ग हो पाए, ठीक है। फिर मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड की बात करें तो काफी इजी इंटरेस्टिंग है। आपको मतलब अगर आप एक रात पहले भी पढ़ोगे ना एग्जाम के तो आपको लगेगा पहले मुझे पढ़ लेना चाहिए था इसे, पहले मैंने क्यों नहीं पढ़ा, तो इससे और अच्छे से पढ़ पाता या पढ़ पाती, क्योंकि ये बुक लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप अच्छे से पढ़ने बैठो तो। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द एग्जिस्टेंस ऑफ द मिजरेबल चाइल्ड इन द वंस हु वॉक अवे फ्रॉम अमिलाज, व्हाट डज द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट चाइल्ड से अबाउट अमिलाज, डिस्कस। हाँ तो इस स्टोरी में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो जिसे बंद कर दिया जाता है बेसमेंट में, तो उस बच्चे के बारे में आपको बताना होगा। यू हैव टू एनालाइज द मोरल इम्प्लीकेशंस ऑफ द चाइल्ड सफरिंग, ठीक है। और उस चाइल्ड के एग्जिस्टेंस की वजह से यूटोपिया है, मतलब किसी को सहना पड़ेगा अगर लाइफ, अगर वहां पे सब कुछ उस जगह पे अच्छा होना है तो उस, लेकिन उन्होंने उस बच्ची का प्रॉब्लम देख के कुछ लोग जाके छोड़ना भी उस प्लेस को स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा बहुत करके मिला के लिखोगे ना तो आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन ग्राफिक नैरेटिव। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ग्राफिक नैरेटिव का डेवलपमेंट यानी कि आपको इसका ओरिजिन से लेके कैसे कैसे ये आगे बढ़ता है इसका एवोल्यूशन बताना है, की वर्क्स बताने हैं। एग्जामिन द यूज ऑफ डिग्ना, डिग्ना आर्ट, ठीक है, ये जो आपका पैटर्न है, ये जो आर्ट है इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, इस पैटर्न के बारे में। जैसे मैंने बताया गॉन्ड आर्ट, डिग्ना पैटर्न, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, क्योंकि इस तरह से आपका आंसर आ सकता है। ये भी हो सकता है कि शॉर्ट नोट में आपको डिग्ना पैटर्न के बारे में पूछते तो आपको उसको डिफाइन करना पड़े, तो वो आप सेकंड यूनिट ब्लॉक 4 का अच्छे से पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको बताना है उसके कल्चरल और नैरेटिव सिग्निफिकेंस के बारे में। किसके कल्चरल नैरेटिव सिग्निफिकेंस के बारे में, डिग्ना पैटर्न के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर थ्रू द सेंचुरीज।
ठीक है, तो इसमें आपको आपके बुक में ये चीज दी हुई है हर सेंचुरी वाइज। आई थिंक ब्लॉक 1 के सेकंड यूनिट में है ये, तो आप अच्छे से देखोगे, वहां से आपको समझ आएगा। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलर कल्चर एंड आइडियोलॉजी। ओके, सो हमारा ये, इसमें आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ आपको एक्सप्लेन करना होगा कि किस तरह से पॉपुलर कल्चर जो है वो हमारे सोसाइटल वैल्यूज को शेप करता है, कैसे उसे रिफ्लेक्ट करता है, इन सब चीजों के बारे में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिक एंड पॉपुलर, इलिस्ट्रेट थ्रू एग्जांपल्स। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस दोनों का डिफरेंस बताना है एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। राइट अ नोट ऑन पॉपुलर लिटरेचर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर। यहाँ पे आपको क्या बताना है, हियर यू हैव टू डिस्कस हाउ जेंडर इन्फ्लुएंसेस एंड इज रिप्रेजेंटेड इन पॉपुलर लिटरेचर। ठीक है, एंड नेक्स्ट है डिस्कस ब्रीफली थ्रू द लुकिंग ग्लास एज फैंटेसी फिक्शन। इसमें आपको फैंटास्टिकल एलिमेंट्स के बारे में बताना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई गई है लुकिंग थ्रू द लुकिंग ग्लास में। तो बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ पे कैट होती है एंड मिस्टीरियस कैट होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे, जैसे हम्टी डम्टी होता है और रेड क्वीन, वाइट क्वीन, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, मेन आपको एलिमेंट्स बताने हैं और उसे डिफाइन करना है, किस तरह से वो आप अपने आंसर को फ्रेम करते हो वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज फनी बॉय डिकंस्ट्रक्ट सोशल जेंडर कंस्ट्रक्ट्स दैट गवर्न द प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, तो दिस इज लाइफ्स, तो लाइफ्स ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरह से अर्जी, जो हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, उसने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए सोसाइटल नॉर्म्स के, किस तरह से वो उसने खुद को जाना। पहले तो वो कंफ्यूज था कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, फिर उसने खुद को पहचाना, अपनी आइडेंटिटी जानी, एंड उसके बाद फिर उसे एक्सेप्ट किया और आगे स्ट्रांगली उसने आगे बढ़ा। ठीक है, डिस्कस द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड एज एन एग्जांपल ऑफ अनकन्वेंशनल, इट्स डिटेक्टिव नॉट डिफेक्टिव, ओके, डिटेक्टिव फिक्शन। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि अगैथा क्रिस्टी का जो नोवेल है ना, काफी अलग है बाकी के आई मीन टू से डिटेक्टिव फिक्शन से। ठीक है, तो आपको बस यही बताना है कि अनकन्वेंशनल क्यों है। देखो, एक तो ये रीजन है कि इसने अगैथा क्रिस्टी ने जो है वो नैरेटर को ही यहाँ पे कल्प्रिट बना दिया है, और वो अपनी स्टोरी खुद बता रहा है कि क्या उसने किया था, और बाकी आप खुद से ढूंढोगे, उससे अच्छे से लिखोगे। इसमें भी आपको वही करना है। ये जो स्टोरी है, जो नोवेल है, उसके राइटर कौन है उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे, और डेट्स याद रखने की कुछ खास जरूरत नहीं है, बस एक बार रीड कर लेना, अगर याद रहता है तो ठीक है, अगर नहीं रहता तो इट्स ओके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज भीमियाना एम्प्लॉयज द इंट्रिकेसीज ऑफ गॉन्ड आर्ट एलेबोरेट। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है एक्सप्लेन करना है कि किस तरह का यूनिक आर्टिस्टिक स्टाइल यूज किया गया है, किस तरह का नैरेटिव फंक्शन यूज किया गया है, तो ये सब आपको इसमें दिखाना है, शो करना है। ठीक है, एलेबोरेट करना है। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज विशाल भारद्वाज द ब्लू अम्ब्रेला अ क्रिएटिव एडेप्टेशन ऑफ रस्किन बॉन्ड्स नोवेला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विशाल भारद्वाज का जो अडेप्टेशन है, यानी जो उनकी मूवी थी, और रस्किन बॉन्ड का जो नोवेला था, वो उन दोनों का जो मतलब किस तरह से क्रिएटिव बनाया गया है, या फिर बनाया है विशाल भारद्वाज ने उस बुक के स्टोरी को, यानी कि रस्किन बॉन्ड की बुक, यानी कि जो स्टोरी है द ब्लू अम्ब्रेला, उसे किस तरह से अडेप्ट करके क्रिएटिव बनाया। ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई है, लाइक जो कैरेक्टर्स हैं उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, उनके डायलॉग्स एंड ऑल। ठीक है, आप वो स्टोरी देखोगे, मूवी देखोगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनालाइज द वंस हु वॉक अवे फ्रॉम अमलास फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर। यहाँ पे आपको बुक पढ़ना होगा, यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना होगा कि जेंडर रोल्स क्या दिखाए गए हैं इस स्टोरी में, तो फिर आप इसका आंसर फ्रेम कर सकते हो। इसमें भी वही करना है, इसके जो उर्सुला है उनके बारे में थोड़ा सा लिखोगे, फिर मतलब ये जो स्टोरी है उसको किसने लिखा, कब पब्लिश हुई,
एंड फिर उनके और भी अदर वर्क्स क्या है, तो उस तरह से आपका आंसर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सही लगेगा। ठीक है, तो आंसर को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपको फ्रेम करना है, लाइक थोड़ा इंट्रो देन बॉडी, जैसे आप करते हो ना, छोटे से पढ़ते आओ कि पहले इंट्रो लिखो, फिर उसकी बॉडी लिखो, उसके बाद कंक्लूड करो, सेम थिंग यहाँ पे भी आपको करना है। राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द सोशियोलॉजिकल अप्रोच रीडिंग ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। यहाँ पे आपको बताना है किस तरह से सोशियोलॉजिकल थ्योरीज पॉपुलर लिटरेचर पे अप्लाई होती है एंड ऑल। ठीक है, इनोमरेट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं करना, सिर्फ डिफरेंट जॉनर्स लिखने हैं पॉपुलर लिटरेचर के और उनके बारे में बताना है। अगर एक दो एग्जांपल दे सकते हो तो काफी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यंग एडल्ट लिटरेचर, इलाबोरेट। सबसे पहले तो इसको आप डिफाइन करने वाले हो एंड देन यही करना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है इसे आपको बताना है। ठीक है, इसको आपको फ्रेम करना है अपने आंसर में अच्छे से इलेबोरेट करते हुए। ओके, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ अ बिल्डिंगस्ट्रोमन कमेंट विद रेफरेंस टू द फनी बॉय। इसमें भी हम लोग पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया है हम लोगों ने बिल्डिंगस्ट्रोमन के बारे में और फनी बॉय में किस तरह से उसका हमें देखने को मिला है। तो आपको क्या करना है, आपको इसके जो मेन कैरेक्टर एनर्जी उसका ग्रोथ दिखाना है, सेल्फ ग्रोथ दिखाना है, कैसे उसको आइडेंटिटी पता चलती है, कैसे वो आगे बढ़ता है एंड ऑल। ठीक है, सबसे पहले बिल्डिंगस्ट्रोमन को डिफाइन कर दोगे, उसके बाद उसके फीचर्स लिखोगे और फिर फनी बॉय को आप उसमें इंक्लूड करके उसका एग्जाम्पल देके उसे बताओगे कि किस तरह से बिल्डिंगस्ट्रोमन यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सेंसेशन फिक्शन। तो सेंसेशन फिक्शन में आपको इससे बस डिफाइन करना है और उसके एग्जाम्पल्स। सेंसेशन फिक्शन को डिफाइन करना है, तो सेंसेशन फिक्शन जो मेनली है, जो नोवेल होती है सेंसेशन नोवेल, वो मेनली फोकस करती है शॉकिंग सब्जेक्ट मैटर पे, जैसे एडल्ट्री, रॉबरी, डिस्गाइज, रिवेंज, किडनैपिंग, इंसैनिटी एंड मेनी मोर लाइक दिस। ठीक है, लाइक मर्डर वगैरह भी हो सकता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई सम ऑफ द सिग्निफिकेंट इश्यूज इन द स्टडी ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। तो यहाँ पे आप क्या चीजें बता सकते हो, रिप्रेजेंटेशन, किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, किस तरह के मास अपील होते हैं, क्या क्रिटिकल रिसेप्शन होते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना मेनली आपके बुक से ही पूछे जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होता। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके जितना इग्नू बुक में दिया हुआ है वो सारे उसी बुक में से आते, कुछ बाहर से नहीं आता। तो अगर आपने उस बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास ऑप्शन होता है, आप जो क्वेश्चन चाहो उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो डिस्कस द थीम ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड क्वीयरनेस इन फनी बॉय। तो इन दोनों चीज को आपको दिखाना है कि किस तरह से अर्जी का जो कैरेक्टर है उसका लाइफ, उसमें इस तरह ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये दोनों फीचर जो है, ये दोनों थीम जो है किस तरह से कनेक्टेड है, किससे, अर्जी के लाइफ से। ठीक है, तो ये आपको ये चीज बतानी है, ये बता सकते हो कि फनी बॉय का ऑथर कौन है, फिर ये कब लिखी गई थी, पब्लिश की गई थी, जैसा मैंने पहले के क्वेश्चंस में बताया। तो ये सारे थीम को आपको बताने की किस तरह से ये इंटर कनेक्टेड हो रहे हैं हमारे मेन कैरेक्टर अर्जी से। ठीक है, डू यू थिंक द एंडिंग ऑफ द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड इज शॉकिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, इलेबोरेट। यहाँ पे तो आपको स्टोरी की जरूरत है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से बताना कि किस तरह के ट्विस्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, पहले किस पे शक जाता है, देन फिर आगे क्या होता है, उसके बाद नैरेटर कैसे रिवेल करता है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिले, मतलब आपको यहाँ पे शो करनी है, देखने को नहीं मिलेगी, आपको दिखानी है। ठीक है, आपको अपने आंसर में शो करनी है। आगे बढ़ते हैं, तो क्रिटिकली कमेंट ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन थ्रू द लुकिंग ग्लास। देखो ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पहले भी आया था, वो इनडायरेक्टली पूछा था, ये डायरेक्टली पूछ दिया है। ठीक है, यहाँ आपको बताने कि लिविस कैरल किस तरह से वर्ड प्ले करते हैं स्टोरी में, उनकी स्टोरी में। ठीक है, इस थ्रू द लुकिंग ग्लास में, और हम्टी डम्टी का मैंने एग्जांपल पिछले में दिया हुआ है। और नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएट भिमियाना एज अ ग्राफिक नैरेटिव। यहाँ पे आपको स्टोरी टेलिंग टेक्निक बतानी है और उसका जो विजुअल इम्पैक्ट है वो बताना है। ग्राफिक नैरेटिव क्या होता है पहले ये डिफाइन कर दोगे। Discuss the ones who walk away from Amelas as a postmodernist parable.
तो आपको यहाँ पे ये आपको बुक से पढ़ना होगा, ठीक है। बट ऐसे आप कर क्या सकते हो, पहले तो वही मैंने आपको बताया कि ये लिखोगे, उसके बाद बताओगे इसका ऑथर कौन है, राइटर कौन है, उसके बाद उसके बारे में थोड़ा बताओगे, उसके वर्क के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके थीम्स वगैरह को, नैरेटिव स्टाइल वगैरह को यहाँ पे शो कर सकते हो। और उन थीम्स और नैरेटिव स्टाइल से ही आपका पता चल जाएगा कि एज अ पोस्ट मॉडर्निस्ट पैरेबल वो जो स्टोरी है, जो नोवेल है, वो कैसा है, ठीक है। ओके, सो फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स की बात करें तो सबसे पहला हमारा आता है कल्चर। तो कल्चर के बारे में मुझे नहीं लगता दैट आई नीड टू एक्सप्लेन इट, क्योंकि कल्चर के बारे में सबको पता होता है। नाउ पॉपुलर कल्चर इन अमेरिका, तो इस टॉपिक की अगर हम लोग इस शॉर्ट नोट की बात करें तो इसमें जो है आपका ब्लॉक 1 का यूनिट 1 आप ओपन करोगे, आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि ये सब टॉपिक के जैसा दिया हुआ है। अब आ जाता है क्राइम फिक्शन। सो क्राइम फिक्शन होता क्या है? सो इट इज अ जॉनर दैट फोकसेस ऑन क्राइम्स, देयर डिटेक्शन, क्रिमिनल्स एंड देयर मोटिव्स, ठीक है। जैसे अगाथा क्रिस्टी का अभी जो हम लोगों ने वर्क देखा, उसके अलावा एक और वर्क है आर्थर कॉनन डॉयल। तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है महजोंग। तो ये क्या चीज है? देखो, ऐसे अगर बात करें तो ये एक ट्रेडिशनल चाइनीज टाइल गेम है, ठीक है। बट अगर हम लोग ऐसे देखें तो इसे हम लोग इस बुक में लिटरेचर में जो है एज अ मेटाफर फॉर स्ट्रैटेजी एंड कॉम्प्लेक्सिटी की तरह देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिजिटल टेक्स्ट। तो डिजिटल टेक्स्ट क्या हो गया? जैसे कि बहुत सारे लोग, आप लोग के पास एक हार्ड कॉपी बुक होगी, आपके हाथ में होगी। बहुत सारे लोग जो है वो अपने डेस्कटॉप, फोन या लैपटॉप, टैब, इन सब चीजों पे बुक देख रहे होंगे। सॉफ्ट कॉपी जिसे बोलते हैं ना, वो डिजिटल टेक्स्ट हो गया, ठीक है। सो ये जो टेक्स्ट होते हैं दैट आर क्रिएटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रीड ऑन डिजिटल डिवाइसेस, ओके। अब नेक्स्ट आ जाता है यंग एडल्ट फिक्शन। तो यंग एडल्ट फिक्शन क्या है? इट इज अ लिटरेरी जॉनर एम्ड एट टीनेजर्स डीलिंग विथ थीम्स रिलेवेंट टू एडोलसेंट्स, ठीक है। इसके मेनली थीम्स क्या क्या होते हैं? आइडेंटिटी हो जाता है, फर्स्ट लव हो जाता है, फैमिली, रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल ग्रोथ। इन सब चीजों के बारे में हमें यंग एडल्ट फिक्शन में या लिटरेचर में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर यंग एडल्ट फिक्शन की बात करें तो उसके पहले जो है टीनेजर्स के लिए भी चिल्ड्रंस बुक आते थे। तो फिर बाद में कुछ चीजें चेंज हुई और फिर बाद में फाइनली यंग एडल्ट फिक्शन या लिटरेचर कहे तो सामने आता है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट हार्ड बॉइल्ड नोवेल। तो अब ये हार्ड बॉइल्ड नोवेल क्या है? क्या किसी चीज को बॉईल कर दिया? नहीं, एक्चुअल में ये एक सब जॉनर है ऑफ क्राइम फिक्शन का, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्राइम फिक्शन का एक सब जॉनर है एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टफ cynical characters and bleak realistic settings। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका एक वर्क है जो कि डैशियल हैमेट ने दिया है और रेमंड चैंडलर ने दिया है, आई थिंक सो। इफ आई एम रॉन्ग एंड करेक्ट मी। नेक्स्ट इज डिग्ना पैटर्न। तो डिग्ना पैटर्न जो है ये एक ट्रेडिशनल पैटर्न होता है जो कि गॉन्ड आर्ट में यूज होता है एंड ऑफन सीन इन ग्राफिक नैरेटिव्स लाइक भीमियाना, ठीक है। तो भीमियाना हमारे बुक में है भी और डिग्ना पैटर्न को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ने वाले हो। आई थिंक ये चीज मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। देखो, अब किच आ जाता है। किच क्या? तो किच क्या है? किच जो है एक ऐसा आर्ट है, ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी लिटरेरी वर्क हो जो कि जिसका जो बहुत ही बूढ़ा हो, जिसको कहते हैं ना कि ये बुक अच्छा नहीं है, ये स्टोरी अच्छी नहीं थी, मूवी देखी कुछ खास नहीं थी, ठीक है। तो उस टाइप की चीज हम लोग किच को कहते हैं, ठीक है। किच को वही सब चीजों में डालते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आपका ये जो चीज है किच, जैसे कोई लिटरेरी वर्क, आपने कोई बुक पढ़ा तो आप बोलते हैं ना उस बुक में कुछ खास नहीं था, कुछ अच्छी चीजें नहीं थी, कैरेक्टर्स अच्छे नहीं थे, कुछ होता है ना, बोल देते हो इस चीज को। मूवीज में गया, कैरेक्टर अच्छी नहीं थी या स्टोरी अच्छी नहीं थी, कुछ भी, तो वो सारी चीजें किच में आती है, ठीक है। एक्सकेटिस में अगर हम लोग आ जाएं तो एक्सटेटिस को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? लिटरेरी यूज क्या है इसका? तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं टू डिस्क्राइब इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीजें दिखाने के लिए, ठीक है। बिल्डिंग स्ट्रोमन के बारे में मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया हुआ है, बताया हुआ है बीच में क्वेश्चन बताते हुए कि इट इज अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी फोकसिंग ऑन द साइकोलॉजिकल एंड मोरल ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट फ्रॉम यूथ टू एडल्टहुड, ठीक है। और हमारा अर्जी फनी बॉय एग्जाम्पल है इसका। आगे बढ़ते हैं।
फैंटेसी नॉवेल्स। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है फैंटेसी नॉवेल। अब देखो फैंटेसी नॉवेल क्या है, इट इज अ जॉनर ऑफ स्पेक्युलेटिव fiction involving magical elements often set in imaginary world, like आपका हैरी पॉटर हो गया है ना। और हैरी पॉटर, आप मुझे बताओगे हैरी पॉटर किसने लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिटेक्टिव फिक्शन। डिटेक्टिव फिक्शन क्या है, तो डिटेक्टिव फिक्शन एक ऐसा जॉनर होता है वेयर अ डिटेक्टिव ईदर प्रोफेशनल और अमेचर इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व्स अ क्राइम, जैसे शर्लॉक होम्स का सीरीज हो गया, ठीक है। अब आ जाता है हमारा सेंसेशन फिक्शन। आई थिंक सेंसेशन फिक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ना। सो it is a genre of fiction in the 1860s that focused on thrilling and sensational topics such as crime and domestic melodrama. तो देखो, ये सेंसेशन फिक्शन क्या है, ये सब जॉनर है डिटेक्टिव क्राइम फिक्शन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूटोपिया। यूटोपिया क्या है, एक यूटोपिया जो होता है ना, इमेजिनरी प्लेस होता है, एक स्टेट होता है किसी चीज जगह का, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट होता है, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट। बट होता है ना, किसी अच्छे चीज के लिए कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा। तो आपका जो वो वाला है ना स्टोरी नोवेल, द वन हु वॉक्स अवे फ्रॉम द ओमेलास, ये वाला आपका यूटोपिया का एग्जाम्पल हो सकता है, जहां आप सब कुछ कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट है किंग्स एबॉट एज अ फिक्शनल सेटिंग। तो ये क्या है, इट इज अ फिक्शनल विलेज इन अगेथा क्रिस्टीज नोवेल द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉइड, ठीक है। And it provides a quintessentially British rural setting that contrasts with the dark events of the story. तो वर्स नोवेल क्या होता है, वर्स नोवेल इज अ टाइप ऑफ नैरेटिव पोएट्री इन विच अ नोवेल लेंथ स्टोरी इज टोल्ड थ्रू पोएट्री rather than prose, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑटोबायोग्राफी ऑफ रेड बाय एन कार्सन, ठीक है। अब देखो मैं इन सबका छोटा छोटा इंट्रो दे रही हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट आए, बुक से आपको पढ़ना ही है ताकि आप अपने आंसर को अच्छे से कर पाओ, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में भी ना आपका 100 to 150 वर्ड्स लिखना ही होता है। तो ये बस एक मैंने एक इंट्रो दिया ताकि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी कोई चीज पहले से पता होती है ना, तो फिर हमें उस चीज को और डिटेल में जानने का क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म, डू आई रियली नीड टू एक्सप्लेन इट? वेल, पोस्ट मॉडर्निज्म की अगर ऐसे बात करें तो इट इज अ लेट 20th सेंचुरी स्टाइल एंड कॉन्सेप्ट्स इन द आर्ट्स, ठीक है, characterized by distrust of grand narratives and ideologies and an emphasis on irony, playfulness and plurality। जैसे कि हमारा कोई एग्जाम्पल मुझे नहीं आ रहा, आप लोग मुझे एक एग्जाम्पल बताओगे इसके बारे में, ठीक है। पॉपुलर क्लासिक के बारे में अगर हम लोग बात करें, इट इज अ वर्क दैट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज हैविंग enduring artistic merit and has this widespread appeal over time. For example, Pride and Prejudice by Jane Austen. So now let's talk about the mass culture. तो mass culture होता क्या है? So it is a cultural work that are produced for and consumed by a large number of people. And ये जो societal norms होते हैं, उनके values होते हैं, इन सबको large scale पे influence करता है। जैसे कोई movies हो गई, तो अब कुछ लोगों को movie में जो hero है उसके जैसा हेयर स्टाइल चाहिए, कुछ हीरो के जैसा वैल्यू जो मूवी में दिखाया जाता है उसके डायलॉग्स के अकॉर्डिंग, तो ऐसा चीज फॉलो करने लगता है, ये सारी चीजें, ठीक है। लिटरेरी कैनन की बात करते हैं, तो लिटरेरी कैनन इट इज अ बॉडी ऑफ वर्क्स ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड बाय स्कॉलर्स एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क इसको माना जाता है, इन्फ्लुएंशियल माना जाता है फॉर शेपिंग कल्चर, ठीक है। और लिटरेरी कैनन ऐसे बुक्स होते हैं जो कि आपके ओल्ड टाइम से लेके अभी तक चल रहे हैं, ठीक है, उसको अभी भी माना जाता है, लाइक शेक्सपियर का मैकबेथ हो गया एंड आपका हैमलेट हो गया, ये सारे लिटरेरी कैनन हो सकते हैं। जॉनर फिक्शन की बात करते हैं। सो जॉनर फिक्शन क्या है, तो इट इज अ फिक्शन दैट एडहर्स टू specific genre conventions such as romance, science fiction and mystery। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑडियंस होते हैं उसको काफी फैमिलियर ट्रूप्स और स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिससे वो काफी रिलेट करते हैं उस स्टोरी से, ओके। तो अब हमारा आ जाता है लिटरेरी टेस्ट। तो लिटरेरी टेस्ट क्या है, जस्ट अ प्रेफरेंसेस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स रिगार्डिंग लिटरेचर, मतलब लिटरेचर में उनकी क्या पसंद है, क्या
इंडिविजुअल्स या फिर जो हमारे ग्रुप ऑफ रीडर्स है उनको क्या पसंद है लिटरेचर में, ये सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आइडियोलॉजी पे। तो आइडियोलॉजी एक ऐसा सिस्टम होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड आइडियल्स दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिसी। बट इफ यू टॉक अबाउट लिटरेचर, इट ऑफन explored and critiqued in literary works। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉपुलर कल्चर। तो पॉपुलर कल्चर भी कुछ खास नहीं है इसमें, बस आपको इतना समझ लो, इट इज अ कल्चरल वर्क्स and practices that are enjoyed by masses such as music, TV shows, fashion, movies, and it reflects and shapes societal trends and attitudes. That's it. So now if I talk about high bro and low bro, तो ये समझ लो बहुत इलाइट होता है और ये लो लेवल का होता है। तो देखो हाई ब्रो क्या होता है? हाई ब्रो लिटरेचर रिफर्स टू वर्क्स दैट आर कंसीडर्ड इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग एंड सोफिस्टिकेटेड। ये सारे जो टेक्स्ट होते हैं ना, ये अक्सर हाई लेवल की एजुकेशन जिसने ली होती है, जो लिटरेरी नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, उन सब लोगों के लिए होता है। ठीक है, और जैसे इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हाई ब्रो की, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स अगर जान लोगे तब तो हाई ब्रो और लो ब्रो में आराम से डिफरेंस निकाल लोगे। लाइक हाई ब्रो का कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होता है, डीप थिंग्स होते हैं, एंड बहुत सारे ऐसी चीजें। ठीक है, इंटेलेक्चुअल आइडियाज वगैरह देखने को उसमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लो ब्रो की अगर बात करें तो लो ब्रो क्या है? तो लो ब्रो लिटरेचर जो है ये इट इज सीन एज मोर एक्सेसिबल एंड एंटरटेनिंग। ये बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है ना, एंड ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, लिटरेचर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होता है, तो वो यहीं पे इसका उल्टा कर देंगे, सिंपल लैंग्वेज होता है। ठीक है, थीम्स भी काफी इजी होते हैं, यही सब चीजें। ठीक है, तो हाई ब्रो लो ब्रो को तो मैंने यहाँ पे काफी आपको इजी वे में बता दिया, तो अब मुझे लगता है कि आपको इसके बाद तो ज्यादा रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको एक चीज को पढ़ के आराम से आप कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने समझाया सबको बहुत ही इजीली समझ आ गया होगा, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं हाई ब्रो लो ब्रो में। हाँ, बट अगर आपको आंसर 100 to 150 वर्ड में लिखना है तो थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। साइंस फिक्शन की बात करते हैं, तो साइंस फिक्शन। Okay, so the next one is science fiction. Science fiction क्या है? तो it is a genre of speculative fiction dealing with imaginative and futuristic concepts, जैसे कि advanced science, technology, space exploration और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइंस फिक्शन। ये भी हम मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। वेल, साइबर पंक इज द लास्ट वन। तो साइबर पंक क्या है? तो इट इज अ सब जॉनर ऑफ साइंस फिक्शन सेट इन अ डिस्टोपियन फ्यूचर। और इसमें मेनली आपको क्या दिखाते हैं? एडवांस टेक्नोलॉजिकल थिंग्स दिखाते हैं, साइबर नेटिक सिस्टम्स दिखाते हैं, जुक्सटापोज्ड विद सोसाइटल कोलैप्स एंड रेडिकल चेंज, ये सारी चीजें होती हैं। और साइबर पंक का ना एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारा मूवी आ रहा है कल की। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो साइबर पंक क्या है? ये एक सब जॉनर है किसका? साईफाई का, यानी साइंस फिक्शन का, जो कि डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाता है। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। तो अब मैंने यहाँ आपको स्ट्रैटेजी बता दी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, शॉर्ट नोट्स भी बता दिए हैं। तो अब इसके अलावा अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए होता है देन यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, बट हाँ, ऐसा मत करना कि 19th को ही बताना, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, और जैसा आप देख रहे हो 17 स्लाइड्स है, एंड आई थिंक ये वीडियो लंबी हो भी गई हो, क्योंकि बहुत सब कुछ कवर तो नहीं किया, बट हाँ बहुत मतलब सारे टॉपिक्स का एक छोटा छोटा पार्ट जरूर यहाँ पे दिखाया, तो उसमें टाइम तो लगता ही है, राइट? तो अब क्या करना है? बस अच्छे से प्रिपेयर करना है, एंड ये जो टर्म्स मैंने बताए हैं ये, और यस, जो क्वेश्चन आंसर और ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, तो ऐसा हल्के में मत लेना है। ये सारे असाइनमेंट्स PYQ से निकाल कर मैंने यहाँ पे सबको अच्छे से अलग अलग करके, और जो भी इम्पोर्टेंट है उसमें वो सारा कुछ मैंने यहाँ डाला है। ठीक है, बट फिर भी कुछ जो टर्म्स है वो छूट गए हैं, जो आपके बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब ये मत ऐसा करना कि सिर्फ इसी से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं, आपके पास टाइम है। मैं आपके 19 के दो दिन पहले ही यहाँ पे इसे अपलोड कर रही हूँ, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो। आप बुक्स पढ़ोगे, ठीक है, समरी देखो, थोड़ा बहुत रीड करो। मैंने आपको बताया ना, ब्लॉक 1 पहले छोड़ के ब्लॉक 2, 3, 4 पढ़ लोगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग है ये बुक। एंड फिर ब्लॉक 1 में आके फिर ब्लॉक 1 से ना आपका मेनली शॉर्ट नोट्स क्या आता है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ उसे, शॉर्ट नोट्स क्या आता है उससे। ब्लॉक 2, 3, 4 से आपका मेन क्वेश्चंस बनते हैं, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, आप यहाँ पे आराम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बुक ना हार्ड नहीं है,
बस इसको पढ़ने का वे आप चेंज कर दोगे ना, तो आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा. ठीक है. नाउ, so that's all for today, besties. I hope this helps you ace your exams. Yes, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more literary insights. And you can also join my Telegram channel. There you will get keep updated with the notices of IGNO, as well as you will get notes. So there is one more thing I want to tell you, that is all the best for your exams, and I know you will do great, literally. So until next time, happy studying.